हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फोर्थ सेशन ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक विच इज रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स। ऑल्दो आप रैशनल नंबर्स पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आज हम करने वाले कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन दैट आपकी एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट विल बी कवर्ड। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट 1 सेज let x be a rational number. Whenever we are talking about rational, just recall the traditional definition of rational, which says p by q form, where p and q are integers and they are co-primes, and your denominator is always non-zero, right? Whose decimal expansion terminates. So we are considering in particular that rational number in which its decimal expansion is terminating. अगर आपको याद हो, दो केसेस हमने रैशनल्स के अंदर किए हैं while discussing the decimal expansion of rationals. फर्स्ट केस आपके पास था if the decimal expansion terminates, और आपके पास टाइप बी थी when it is non terminating but recurring. वो एंड नहीं हो रहा है डेसिमल but it keeps on repeating itself, right? So now we are talking about the very first type A. We are talking about type A where the decimal expansion is terminating. Then x can be expressed in the form p by q. I told you this is your traditional definition where p and q are co-primes. And the factorization of q. Friends, clearly we are focusing here upon the denominator which is q. Alright? Your q is of the form, I'm putting a circle over here, 2 raised to power n into 5 raised to power m. Where m and n are non-negative integers. And when I'm saying non-negative, I hope you people understand. You all understand that non-negative का meaning ये है कि वो negative ना हो बस. Either it is 0 और positive. वो 0 हो सकती है पावर, ये m और n की वैल्यूज या 0 हो सकती हैं या पॉजिटिव हो सकती हैं, बस नेगेटिव ना हो. ठीक है? Think logically, what is the reason now? इस Q का ऐसे होने का रीजन क्यों है? फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए. 2 into 5 makes 10. अगर आपका Q, suppose it is in the form of 10 raised to power something, it is a power of 10. Your Q suppose is a power of 10. 10 या फिर 10 की कुछ और पावर है, तो it becomes very easy for my given number to terminate. अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है 15 by 100, ये क्लियरली 10 की पावर है, 100 is 10 स्क्वायर, राइट? न्यूमिनेटर में कुछ भी पड़ा हो, जब आपके पास जीरोस प्रेजेंट है इन द डिनोमिनेटर पर्टिकुलरली, वी कैन टर्मिनेट इट, वी कैन कन्वर्ट इन द डेसिमल फॉर्म लाइक दिस. सो दिस इज द रीजन व्हेनेवर योर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, it terminates after finite number of steps, then your Q must be in the form of 2 raised to power something into 5 raised to power something, because ultimately that will become 10 power something. That will become, your Q will become power of 10. Okay, so which clearly makes it easy for us to terminate the decimal expansion of any given number. The first question is to check whether the following numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating but recurring, but that too without performing the long division. Without performing long division, you have to check the nature of given numbers. Friends, when you check this number, your focus should be upon the denominator. आपका फोकस डिनोमिनेटर पर है. This is your Q. Okay? जब आपने Q को चेक किया कि इसको कैसे फैक्टराइज करें, आपको रियलाइज होगा कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5. ओके, जस्ट रिकॉल द रिजल्ट 1 जो अभी हमने किया है. मैंने आपको बताया था आपका Q 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग होना चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 की पावर 5 आ रहा है, विच मीन्स 2 हमारे पास अभी तक नहीं है. तो हम एक ऑल्टरनेट कर सकते हैं. हमें पता है किसी भी वैल्यू से अगर हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड. एक्चुअल नंबर पर, ओरिजिनल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता. ऑलराइट, तो अपने डिनोमिनेटर को उस फॉर्म में लाने के लिए मैंने पर्पसली क्या किया, मैंने 2 raised to power 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया यहाँ पर. ओके, अब होगा क्या,
पर्पसली मैंने इनकी पावर्स सेम रखी हैं सो दैट वी कैन कंबाइन देम। जब आप इनको कंबाइन करोगे विद द होल पावर 5 रिमेन्स एज इट इज, तो 5 into 2 आपका 10 बन जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, आइए देखते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर आपको याद हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम पहले कर चुके हैं। इफ यू वांट देन आई कैन शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ टुडेज वीडियो वेयर यू कैन रिकॉल ऑल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इजीली। मैंने दोनों वैल्यूज को कंबाइन किया, सिंस इनकी पावर सेम है, इनका एक्सपोनेंट सेम था, तो उसको हम एक बार कंबाइन करके लिख देंगे। हमें पता है फ्रेंड्स 2 raised to power 5 की वैल्यू 32 होती है। ये आपका बन गया 10 होल पावर इज 5। फर्दर आप न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर यू आर गोइंग टू हैव 416। आपके पास वैल्यू आई 416 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर आपका था 10 raised to power 5। इट विल बी रिटन लाइक दिस। वी हैव 5 zeros, तो हमें 5 प्लेसेस छोड़कर डेसिमल लगाना था। 3 वैल्यूज ऑलरेडी 3 डिजिट्स मेरे पास हैं, 2 zeros हम अपनी तरफ से इससे पहले इंक्लूड कर लेंगे। विल पुट zeros बिफोर दिस नंबर। दिस इज योर आंसर। और क्लियरली आप देख सकते हैं मेरे आंसर की नेचर क्या आई। उसने यही पूछा था कि कौन सी वैल्यू का डेसिमल टर्मिनेट करेगा और कौन सी वैल्यू का डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। सो क्लियरली व्हाट कैटेगरी इज दिस, व्हाट टाइप इज दिस? यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। इट इज अ रैशनल नंबर। एंड फर्दर व्हाट टाइप इज दैट? इट इज अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। मैं कोई टिपिकल टर्म, कोई टिपिकल वर्ड ऐसा यूज नहीं कर रही हूं जो आपको समझ ना आए, ठीक है। अपनी तरफ से मेरी हमेशा यही ट्राई होती है कि कैसे आपको इजी से इजी मेथड और इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं मैं हर कॉन्सेप्ट को। ओके, सो यस, इट इज अ रैशनल नंबर। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द नेक्स्ट सब पार्ट इज 17/8। इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 2 क्यूब। अब क्लियरली अपना रिजल्ट 1 फिर से रिकॉल करिए। आपको पता है कि क्यूब 2 raised to power something into 5 raised to power something होना चाहिए, बट 5 इज मिसिंग हियर। और 2 की पावर को ध्यान में रखते हुए हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें? यस, 5 क्यूब से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। 5 क्यूब बनता है 125, जो कि न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा। एंड अगेन वी कैन कंबाइन द वैल्यूज इन द डिनोमिनेटर। दोनों की पावर सेम थी, तो मैंने होल पावर करके दोनों को लिख दिया है। 2 into 5 becomes 10 and the power is 3। आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 2125। 10 क्यूब की वैल्यू फ्रेंड्स आपको पता है 1000 होती है। ये लिखा मैंने। सिंस देयर आर 3 zeros इन द डिनोमिनेटर, तो 3 प्लेसेस छोड़ के आपको डेसिमल लगाना था। So it will come like this, 2.125। Clearly ये रैशनल नंबर है। एंड अगेन विच टाइप इज दिस? क्योंकि आपका डेसिमल पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुका है, सो दैट इज व्हाई इट इज पर्टिकुलरली टाइप ए। यस, रैशनल नंबर एंड इट इज टर्मिनेटिंग। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इट्स अ रैशनल नंबर विद टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है, जस्ट ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर वेरी केयरफुली हियर। यहाँ पर आपके पास 2 की पावर भी समथिंग गिवन है और 5 की पावर भी गिवन है, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज। 2 की पावर 3 है और 5 की पावर हमारे पास 2 है, मीन्स पावर्स आर नॉट सेम। सो फ्रेंड्स, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि 2 और 5 दोनों की पावर्स को हमने सेम बनाना है। 2 क्यूब आई विल राइट एज इट इज, ये मैंने एज इट इज लिखा। अब 5 की पावर एक लेस है, तो मैं क्या करूंगी? इस पूरी वैल्यू को मैंने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। न्यूमरेटर मेरा एज इट इज आ गया। हमें पता है जब हम मल्टीप्लाई करें और बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, अगेन यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 5 स्क्वायर इंटू 5 raised to power 1
ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 5 क्यूब। अब आप देख सकते हैं क्लियरली जो हमारी पहले प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। अब दोनों की पावर्स ही सेम हो गई है, 2 की पावर एंड 5 की पावर, बोथ आर 3 हियर, विच मीन्स हम डिनोमिनेटर को इजीली इस वे में लिख सकते हैं। मैंने 2 into 5 लिखा एंड होल क्यूब लिख दिया मैंने। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 10 बन जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपके पास 10 क्यूब आ चुका है डिनोमिनेटर में। जब आपने न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया टुगेदर, यू आर गेटिंग 115 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव, क्योंकि ये 10 क्यूब है। अब आप इसको डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने, ये आ चुकी है आपके पास डेसिमल फॉर्म, which clearly terminates, which means yes, it is a rational number. And what type further? It has a terminating decimal expansion. The next question is 35 upon 50. Let's check the denominator again. इसको हम कैसे लिख सकते हैं सॉल्व करके? सबसे पहले अगर मैं 50 को फैक्टराइज करना चाहूं, मैं इसको लिख सकती हूँ 25 into 2, बिकॉज 25 2s are 50 होता है हमारे पास। 25 को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास क्या आ चुका है, मेरे पास 5 की पावर है 2, मतलब 5 स्क्वायर है हमारे पास, और 2 की पावर है सिर्फ 1। अगेन पावर्स को सेम बनाना हमारा टारगेट होना चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमिनेटर में आपको इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 70 मिल चुका है। 35 2s are 70 होता है, राइट। और डिनोमिनेटर में आपको मिला ये। सिंस पावर्स आर सेम, तो इसको मैं अगेन कंबाइन करके लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर में आपके पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ चुका है 70 अपॉन 10 स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, जब मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इट इज बिकमिंग 0.70। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम डेसिमल के बाद वैल्यूज को रीड करते हैं, मैं इसको 0.70 नहीं बोलूंगी। वी रीड एवरी सिंगल डिजिट सेपरेटली। दिस इज हाउ वी रीड द वैल्यूज आफ्टर डेसिमल। दिस विल बी रीड एज 0.70। So clearly decimal expansion is terminating here. This given number is rational with the terminating decimal expansion. What is the next result now? The result 2 is let x equals to p upon q be a rational number. Again हम एक rational number consider करके चल रहे हैं, which is in p by q form, such that the prime factorization of q. Again हम किसको टारगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स? डिनोमिनेटर को, which is q here. Prime factorization of q is of form this. ये वही फॉर्म है जो अभी हम रिजल्ट 1 में करके आए हैं, 2 raised to power n into 5 raised to power m, where m and n are नॉन नेगेटिव्स। नॉन नेगेटिव का मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं, वो सिर्फ नेगेटिव ना हो, इधर इट कुड बी 0 और पॉजिटिव। ओके, देन x has a terminating decimal expansion. Friends, don't you think so? It is just the converse of result 1. रिजल्ट 1 में हमने कहा था कि उसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो हमने प्रूफ क्या किया उसमें कि q की फैक्टराइजेशन आपके पास कुछ इस फॉर्म में आएगी। और यहां पर आपको क्या गिवन है? x रैशनल नंबर है, और जिसके डिनोमिनेटर की आपको फैक्टराइजेशन ऑलरेडी अब 2 raised to power into 5 raised to power समथिंग में गिवन है। ओके, और रिजल्ट कहता है कि अगर इसकी फैक्टराइजेशन, इस q की फैक्टराइजेशन इस फॉर्म की है, तो मीन्स ये किस टाइप का रैशनल नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग। द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एज सच अ रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर की एक्सपेंशन किस टाइप की आने वाली है? वो क्लियरली टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी, जो टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज जस्ट द कन्वर्स ऑफ रिजल्ट 1, which means that this result goes in both the ways. It's a bidirectional result. अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, which means q की फैक्टराइजेशन कैसी होगी? 2 raised to power n into 5 raised to power n टाइप। ओके, और अगर इसका कन्वर्स मैं डिस्कस करूं, तो अगर आपको फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में गिवन है 2 raised to power समथिंग into 5 raised to power समथिंग, which means वो कैसा रैशनल नंबर होगा? ऐसा रैशनल नंबर होगा जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्लियरली टर्मिनेटिंग होगी। सो मीन्स दिस रिजल्ट गोज इन बोथ द वेज। नाउ वी हैव another very important result which says let x, again
we are considering P upon Q form, which means x is a rational number such that the prime factorization of Q, again friends हम denominator को discuss कर रहे हैं जो आपका Q है यहाँ पर, अगर इस Q की factorization is not in the form, अगर ये इस फॉर्म में अब ये नहीं हुई 2 raised to power something into 5 raised to power something, अगर आपका डिनोमिनेटर उसकी फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं मिलती है, इट्स नॉट हियर, which means then x, of course your x is a rational number, but now it will fall under the category B. It will have a non-terminating but recurring decimal expansion. This is a change over here. अब ये terminating decimal expansion वाला केस नहीं है. अगर आपका Q इस फैक्टराइजेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, which means your given rational number, वो किस कैटेगरी का रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, और यू मे कॉल इट रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, वन एंड द सेम थिंग, एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, सो दिस इज द डिफरेंट केस हियर. जब आपका Q इस फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, 2 raised to power n into 5 raised to power something, इनकी फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस की जा सकती आपके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन, which means your x, it falls under the type B. Now it will have non-terminating but recurring decimal expansion. Let's do some examples. You'll get a better idea. To understand this result 3, we have an example now. This is question 1, third part given. When you will observe your Q and you will factorize it. Friends, let's factorize this denominator. You will observe that this is what you are going to have in the denominator now. It can be written like 5 into 13 into 7. Okay? Clearly, इसकी factorization उस फॉर्म में नहीं है. 2 raised to power something into 5 raised to power something नहीं है ये. You can observe some different factors over here. We have 13, we have 7 also, which means clearly it is not of the form. This form is not present over here. 2 तो आपके पास clearly इस factorization में कहीं पे exist ही नहीं कर रहा. 2 के प्लेस पे हमारे पास कुछ unwanted additional values आ चुकी हैं, which means your this given number, इसका denominator इस form में express नहीं हो सकता है. That is why, what kind of rational number is this now? This is a rational, but using the result 3, it has non-terminating recurring decimal expansion. So this is how I have written over here. Since its denominator cannot be expressed, it cannot be written in the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. That is why it has non-terminating recurring decimal expansion. Alright, so this is related to your result 3 which we have just discussed. Alright, I hope all the cases are clear now कि कब आपको result 1 यूज हो रहा है, कब आपका result 3 यूज हो रहा है. result 2 friends just the converse of result 1, वो सिर्फ result 1 का converse था कि हम vice versa भी कर सकते हैं result 1 को. Okay friends, your question 2 is again on the same steps. There's nothing new in that. Question 2 says that just write down the numbers given in question 1 which have terminating decimal expansion. तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन 1 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आपको जस्ट क्वेश्चन 2 में उनकी लिस्ट बनानी है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन इन पर्टिकुलर क्या है, टर्मिनेटिंग है. तो क्वेश्चन 2 में कुछ भी नहीं है करने वाला. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो द क्वेश्चन 3, it says that few decimal expansions are given below. You have to check whether they are rational or not. So after checking their nature, their decimal expansion, we have to judge whether they are rational or irrational. And if they are rational, then you have to check in particular, you have to discuss the nature of their prime factors of Q. आपको उनके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन को डिस्कस करना है. इन केस वी हैव रैशनल नंबर्स. अगर आपका नंबर इरैशनल है तब तो पॉइंट ही नहीं है, कुछ भी करना नहीं है आपको. यू विल सिंपली से नो इट इज एन इरैशनल. बट येस इफ यू हैव अ रैशनल नंबर गिवन, तो उस रैशनल नंबर के बिहाफ पे उसके डिनोमिनेटर को लेते हुए आपको डिस्कस करना है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को.
दिस इज द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3. क्लियरली फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चुकी है. यस, दैट इज व्हाई दिस इज अ रैशनल नंबर. पहली बात तो डेसिमल टर्मिनेट हो चुका है, विच मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर. और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चुकी है मीन्स अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव करती हूं, देयर विल बी 9 zeros written in the denominator. Okay, after removing this decimal I have put the 9 zeros in the denominator. आपको डिनोमिनेटर में जीरोस दिख रही है, विच मीन्स ये कब पॉसिबल था? जस्ट रिकॉल योर रिजल्ट 1. डिनोमिनेटर में जीरोस बनने का रीजन यही था कि आपका जो ये q है, विच मीन्स दिस q कैन बी रिटन in the form of 2 raised to power something or 5 raised to power something or both. बस या तो वो 2 की पावर्स में कुछ हो, 5 मिसिंग होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर अकेला 5 पावर समथिंग गिवन है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. या फिर दोनों प्रोवाइडेड है, देन वेल एंड गुड. तो ये केसेस हो सकते हैं अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, विच मीन्स वो तभी पॉसिबल हुआ जब उसके क्यू की फैक्टराइजेशन हम इस तरह से कर सकते हैं. यस, इट इज अ रैशनल नंबर एंड इट्स क्यू कैन बी फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power something और जस्ट 5 raised to power something और बोथ. अगर दोनों ही इकट्ठे ही गिवन है, 2 भी गिवन है, 5 भी गिवन है, then it's well and good for us. This is the next subpart now. Clearly आप ऑब्जर्व करिए, it still goes on and on and on, which means the decimal is non-terminating. ये क्लियर हो चुका है, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है. अब बात सिर्फ इतनी है कि आपको ये चेक करना है क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है. उसी से ही डिसाइड होगा कि आपका गिवन नंबर रैशनल है या फिर इरैशनल है. लेट्स चेक इट. फ्रेंड्स, इफ यू ऑब्जर्व हियर आई हैव 1 0, next time I am getting 2 zeros, next time zeros are increasing, means there is no particular block of digits repeating. हर बार वैल्यूज चेंज हो रही हैं, जीरोस इंक्रीज हो रही हैं, विच मीन्स जस्ट रिकॉल योर प्रॉपर्टी ऑफ इरैशनल. ना तो वो टर्मिनेट होते हैं, ना ही वो रिपीट करते हैं, विच मीन्स दिस गिवन नंबर इज एन इरैशनल. तो आपका काम ही खत्म हो चुका है, आपको क्यू की फैक्टराइजेशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. रेपिटेशन भी नहीं है यहाँ पर, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ऐसा नहीं है जो खुद को रिपीट करे. दैट इज व्हाई दिस इज नॉन रेकरिंग केस. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आप वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, आपका काम खत्म. देयरफॉर इट इज एन इरैशनल नंबर. नो नीड टू प्रोसीड फर्दर, आपको आगे कुछ भी नहीं करना है. नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट. 43 point this value and there's a bar over it. अगर आपको याद हो रैशनल्स में हमने किया है, बार इज an indicator. It is an indicator of repetition, which means these digits, block of digits is repeating itself after few steps. All right? तो means clearly ये एक रैशनल नंबर है. ये हमें क्लियर हो चुका है कि ये रैशनल नंबर है. इसका डेसिमल चाहे टर्मिनेट ना हो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट दिस बार इज एन इंडिकेटर कि ये रिपीट होता है, रेकरिंग केस है ये. ओके, अगर आपको याद हो रिजल्ट 3 में हमने यही किया था, व्हेनेवर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग वाला केस हो, विच मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है. तो मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर क्यू है, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ cannot be written in the form of 2 raised to power something into 5 raised to power something, which means इन values के अलावा भी उसमें कोई factor present होगा. That is why I have written, yes, it is a rational number, there is no doubt. Its decimal expansion is non-terminating but repeating, recurring. Therefore, its q, which means its denominator will contain some other factor also. Other than 2 or 5, it will also have some other factor. उसमें 3, 13 कुछ भी हो, पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू, कोई एडिशनल फैक्टर जरूर प्रेजेंट होगा. यही रीजन है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ टर्मिनेट नहीं हुई थी, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग थी. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर नाउ.
With this, we are done with the chapter 1. I'll meet you in the next video. Additional concepts, facts, बहुत सी videos बना रही हूँ friends. Keep supporting my channel. If you are new to it, don't forget to subscribe. Do like it, share it with your friends. Stay tuned, stay happy.